Hello everyone. So in our last class we have finished chapter 4, right, if you remember. Now today we are going to start with chapter 5, that is magnetism and matter. Fine. This is our chapter name, right, magnetism and matter. So as you know that in chapter 4, right, till means chapter 1, 2, 3 and 4, right, till 4 chapters, right, we have done all the topics related to current, right. Like in chapter 4 also it was like magnetism only, but we have discussed mostly about what current flowing, right, means magnetism produced by what, current, right. When a current flows in a wire, what kind of magnetism is produced, right, and what is shape, this and that we have discussed, right. Now from chapter 5 onwards, right, we will discuss mostly about magnets, right. Like what was magnet? If you just ask, right, what is a magnet, right? So see, magnet is anything, right? It's just a natural phenomena of a substance, right? It's a natural phenomena of a substance which attracts or repels, right, towards a metal, or you can say a magnetic material, right? That's it. So basically, let's just do some revision, like from class 10. You already know about magnetism, right? Few things, right? So today we are just, first of all, we are just going to discuss small thing like magnet, right? When I say magnet, right, I have already told you what is a magnet, right? What is a magnet? Then after that we know types of magnets. If you remember, types of magnet. So basically, how many types of magnets are there, right? So basically, you'll see there are basically, first is your bar magnet, second U-shaped magnet. I guess you know these things, right? U-shaped magnet, right? Or we also call this U-shaped magnet as what? Horseshoe magnet, right? This is also known as what? Horseshoe magnets. And number 3, that is artificial magnets. So basically, you can see there are 3 types of magnets, right, presently, right? First of the two, right, first 2 magnets are basically the natural magnets that exist in nature, right? And I hope you know this, from where this term magnet came, right? Because it was originally, first of all, the magnets were found on an island, right, that was known as Magnesia. The name of the island was what? Magnesia, and there it was found. So that's why its name is given magnet. Fine? Is it clear or not? So see, there are 3 types. Now we will discuss. We are mostly considered about this magnet, that is bar magnets and artificial magnets. These two. We require these 2 magnets mostly in our further classes. Is it clear or not? So let's talk about this, right? Let's talk about this. Now, if I just say bar magnet, right? So if you just see what is a bar magnet, right? If I just say what is a bar magnet, so it is just simple magnet, right? It is just simple. Now, simple magnet which looks like a bar, right? This is called a bar, like a small chocolate that dairy milk, if you say, or whatever you eat, like Munch, right? 5-star, these things, right? If you see, they all chocolates are in the shape of what? That is called what? Bar. Munch, dairy milk, they are all the brand names, right? But if I just say what is the shape of that chocolate, right? That is what? Simple a bar. That's why it is called as what? Bar magnet, which is in the shape of what? Rectangular. Is it clear or not? Bar magnet in the shape of what? It is in a shape of a rectangular shape. Fine? Is it clear or not? Now, what is its speciality? So it have got 2 poles, means like the end points. One is north and the other is south. Fine? One is north and the other is what? South poles. Is it clear or not? There are 2 poles of the magnet or bar magnet, and obviously in every magnet there are 2 poles. If we just consider U-shape also, we just say U-shape also. So there also in the end point, right, there is a bar, means there is a poles, right, in the end points, right, that is a poles of a magnet.
So there are two poles, that is what North Pole and South Pole. Fine, two poles, North Pole and South Pole, and this North Pole, right, is considered as positive and this is known as negative, right? And this is what is nothing but the value, right? Now if I just consider plus north and south, this we have, right? So from this what we can conclude here, right? What we can conclude here. Now let's discuss about this bar magnet, right? So we'll discuss the characteristics of bar magnet. Characteristics, right? So first characteristic already have discussed, that is what it have got two poles, north and south, right? And we consider north pole as positive end and south pole as negative end. Fine, is it clear or not? Is it clear or not? So now if I just say, if you just suspend, right, if you just just consider this is a bar magnet, just imagine this is a bar magnet, right? And if I just consider not, let's take this one, better one. Now see this one is what, just say this is your bar magnet, this is, let's say, blue one, let's see, blue marker, let's say this is North Pole and this is South Pole. Now if I just suspend this, right, if I just suspend this, like if I just hold it freely like with a string, फाइन, समझ में आ रहा है ना? देखो मान लो अगर मैं इसको सीधा पकड़ूंगा ऐसे, है ना, लाइक विद अ स्ट्रिंग, कोई रस्सी से पकड़ से लटकाया है ना, जो लटकाने के बाद, है ना, जो जिस डायरेक्शन में शो करेगा ना, मीन्स इट विल लोडेड लाइक दिस समवेयर, इट विल शो some direction, like this is north, this is south, right? So it gives us, it gives the geographical north and south. If I just consider this as earth, just see, if I consider this as earth, and you know, if earth is also a what? Earth is also a magnet. Earth behaves as a what? Magnet. So obviously it have also got what? Two poles. It must get two poles. If it is a magnet, then magnet have two poles, right? Now see, let us consider this is a north and this is south. We just say north and south, or just opposite. I can, if I just say, let's say this is south and this is north. Fine. So can you tell me what is the geographical north and south here? What is the geographical north south of earth? So geographical north south will be given by the bar magnet. Like see, if I just suspend bar here, a magnet here, right? So this is north, this will give north, this will give south, because we know north and south will attract, right? Opposite faces what? Always attract. If I just consider a bar magnet like this, see, अगर मैं दो बार magnet अगर ऐसे लूँ, है ना, तो पता अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा? रिपेल. इट विल व्हाट? इट विल डू रिपेल, है कि नहीं है? सो अगर ये रिपेल किया आपका, है ना, मतलब क्या अलग जाएगा, इसलिए. लेकिन अगर ये यहाँ पे मैं साउथ डाल दूँ, यहाँ पे लेट्स से साउथ, इट इज टर्म्ड एज माइनस. सो प्लस माइनस अट्रैक्ट इच अदर इजीली, है कि नहीं है? इसलिए मैंने आपको कहा ना, इसको प्लस माइनस में लेकर चलो, आपका इजी रहेगा समझने में, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर ये देखो, अगर ये मैंने यहाँ पे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, राइट, इफ आई जस्ट सस्पेंड दिस मैग्नेट फ्रीली, तो बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कुछ है ना, तो ये क्या दिखाएगा? इधर साउथ है ना, दिस विल शो नॉर्थ हियर, दिस शो साउथ हियर, मतलब ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज हियर एंड साउथ इज हियर. ठीक है, ध्यान रखना कि एग्जाम में प्रैक्टिकल में स्पेशली ये कुछ पूछा जाता है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन मतलब क्या? मतलब जिधर मैग्नेट है ना, जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे कि नहीं है, जिधर मैग्नेट शो करेगा नॉर्थ एंड साउथ है ना, वही अब क्या होगा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ होगा. ठीक है ना? नॉट ये पोल्स है, हाँ, ये साउथ एंड ये नॉर्थ है ना, ये ज्योग्राफिकल नहीं है. डू नॉट कंफ्यूज विद दिस. सी, दिस इज नॉट द ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ, राइट? दिस इज द पोल ऑफ मैग्नेट. ठीक है ना? ये अर्थ का बस क्या है? एक पोल है. ठीक है ना? क्या अर्थ का बस एक पोल है. लिखते हैं ऐसा करके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट? आई गेस यू हैव लर्न इन ज्योग्राफी, राइट, इन क्लास 9-10 लेवल. सो ये बस क्या है? एक पोल है, नॉर्थ एंड साउथ क्या है? बस एक इसका पोल ऑफ द अर्थ है. हमें पोल में इंटरेस्ट है, हमें डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. देखो अब क्वेश्चन पूछोगे कि हमें ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का जरूरत क्यों पड़ता है ना? जस्ट फॉर नेविगेशन. हमें नेविगेशन के लिए ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है ना? अब बहुत लोगों मैंने सोचा कि नेविगेशन क्या होता है ना? एक नया वर्ड में इंग्लिश वर्ड यूज किया था ना, नेविगेशन मतलब क्या? जब रास्ता पता करना है. लेट्स से कि एक शिप सपोज जब निकलता है यहाँ से ना, लेट्स से ब्रह्मपुत्र से एक शिप निकला, कि नहीं है, उसे पहुँचना है कोलकाता फॉर एग्जाम्पल, हम चले, हाँ, वाया रिवर, है ना, ब्रह्मपुत्र से निकल रहा है कि नहीं है, तो उसे पता कहाँ से चलेगा? इधर टर्न लेना है, इधर टर्न लेना है. वो तो रोड तो है नहीं जो एक सिग्नल लगा दो वहाँ पे कि इधर राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है ना?
बस है ना, ये तो बताएगा नहीं वहाँ पे ना, क्योंकि पानी में कोई लगा रखता तो नहीं है कि लाइट टेक राइट टेक लेफ्ट, जैसे हाईवे पर लगा हुआ होता है ना, तो वो एक रिवर है पानी सी, राइट। सो वहाँ पे बेसिकली क्या काम होता है, हमें एक नेविगेटर चाहिए होता है। नेविगेटर मतलब क्या, जो डायरेक्शन बताए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक। तो ये हमें पता है ऑलरेडी कि ये जो कोलकाता है ये नॉर्थ में पड़ रहा है, ना ईस्ट में पड़ रहा है, ना साउथ में पड़ रहा है, ना वेस्ट में पड़ रहा है। दिस यू नो थ्रू विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैप। अब देखा होगा ना बहुत सारा मूवी वगैरह में कि मैप यूज़ करते हैं, राइट, शिप पे यूज़ करते हैं, बिकॉज उन्हें देखना होता है कि ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ना वेस्ट होगा, ना ईस्ट होगा, राइट। एंड अकॉर्डिंगली वो लोग बस एक क्या करते हैं, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना, फ्रीली ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। जिसे आजकल तो बहुत हाईटेक हो गया हमारा बेसिकली नेविगेटर, राइट। सो एक नेविगेटर यूज किया जाता है सो दैट वी कैन नो द डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट, इज नोन व्हाट, जियोग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो जिधर ये दिखाएगा इधर नॉर्थ, सी अगर ये इधर नॉर्थ दिखा रहा है ना, मतलब ये हमारा क्या है, दिस इज अ जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, फाइन। दिस इज व्हाट, जियोग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद दिस साउथ एंड नॉर्थ, दिस इज व्हाट, दिस जस्ट द पोल्स, है ना। बोल रहा हो ना ये नॉर्थ है, साउथ का ट्रैक करना चाहिए उसके लिए, है ना, ऐसा नहीं होता है ना, ये जस्ट एक पोल है, ठीक है। दिस इज जस्ट व्हाट, पोल। पोल एंड ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लीज ये माथा में रखना बात। पोल एंड ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो किसी को पता करना होगा कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ किधर है, क्या करोगे, सिंपल सा है, एक बार मिनट लो ऐसे करके एंड उसको फ्रीली हवा में लटका दो, तो वो दिखा देगा कि नॉर्थ किधर है एंड साउथ किधर है, ठीक है। आया बात समझ नहीं आया। सो हम लोग ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा इन लैब ऑल्सो, है ना, विल गेट, आई जस्ट शो यू इन द लैब वंस, इन द प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे ना, देन आई विल शो दिस प्रैक्टिकल, जस्ट रिमाइंड मी वंस एट दैट टाइम, ठीक है। सो ये पहला बात आपको हुआ कि जब भी फ्रीली सस्पेंड करोगे सेकंड ही है, सो वो बार मैग्नेट क्या देगा आपको, दैट बार मैग्नेट विल गिव यू व्हाट, द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ ऑफ व्हाट, अर्थ, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया इसका। सेकंड क्या होगा उसका, जब मान लो कि अगर इस बार मैग्नेट को है कि नहीं है, अगर मान लो कि एक बार मैग्नेट सपोज ऐसे मैंने मान लो सेकंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड अगर मान लो ये बार मैग्नेट ऐसे है, वर्टिकल रखना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। सो अगर किसी का मन आया अरे भैया इसको तो काट देना, आधा आधा काट देना, लाइक चॉकलेट्स यू डिवाइड ना, तो देखो अगर मैं इसको हाफ काट दिया तो क्या मैग्नेट रहेगा कि नहीं रहेगा, सवाल है, आंसर सॉरी सवाल नहीं है, आंसर क्या रहेगा, यस। ये बार देखो इसको काटने के बाद भी कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो एट दैट टाइम क्या होगा, मान लो ये नॉर्थ था और ये साउथ है, लेट्स से पोल्स, है ना। जब इसको काट दोगे कि नहीं है, जब काटने से क्या होगा इसका, बेसिकली काटने से क्या होगा इसका, देखो काटने से क्या होगा, ये नॉर्थ ये हो जाएगा, और जो कटा यहाँ तो ये जो पोर्शन यहाँ से कट किया ना, ये दिस पोर्शन ये अब क्या हो जाएगा, अब साउथ हो जाएगा, ये पोर्शन अब क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना ना, ये हमें क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्थ रहेगा ही। मतलब कितना भी काट दो, पीस में कितना भी काट दो है कि नहीं है, वो मैग्नेट ही रहेगा। तो जहाँ से काटोगे बस वो क्या होता रहेगा, साउथ पोल होता जाएगा वो, ठीक है, अपने आप पोल्स बनाता जाएगा। सोचोगे अब अगर अपना बना रहा है तो फर्क क्या पड़ा, एक छोटा मैग्नेट यूज करो या बड़ा यूज करो, क्या फर्क उसमें, है ना। तो फर्क क्या है, फर्क है डायपोल मोमेंट का, मतलब स्ट्रेंथ। डायपोल मोमेंट याद है ना, क्या था आपने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद कीजिए थोड़ा सा, है ना। सो देखिए यहाँ पे ध्यान से होगे, ये जो है नॉर्थ एंड साउथ एक डायपोल के फॉर्म कर रहा है, देखो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस है ना। नॉर्थ एंड साउथ क्या कर रहा है इसके लिए, एक दो, अगर मैं ध्यान चीजें आप सोचो डायपोल कहाँ से आ गया, है ना, कहाँ मैग्नेट कर रहे थे आपने, कहाँ डायपोल घुसा दिया इसमें, इलेक्ट्रिसिटी आ गया इसमें कि नहीं है। सी दे आर कंबाइंड टुगेदर, दोनों आते हैं, देखो ये प्लस है ये माइनस है ना, दोनों क्या हुआ देखो, प्लस माइनस दिखा है ना, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हुआ, एक डायपोल हुआ कि नहीं, याद है आपको ना, जब हमने किया था क्या 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 आपने देखो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू किया था, सेपरेटेड 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस लाइक दिस, है कि नहीं है, दैट इज व्हाट ट्वाइस ऑफ, क्या था वो, एल था ना, ए था, क्या आप लोग याद नहीं है आप लोगों ने, बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट चैप्टर, राइट। सो मैं ट्वाइस है चैप्टर 2, अगर मैं चैप्टर 2 का बात करूँ तो आई टेकन ट्वाइस है, राइट। आई डोंट नो चैप्टर 1 हमने क्या लिया था, ए या एल लिया था, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना डिवाइड किया इसको, ट्वाइस से सेम है, देखो ये प्लस है माइनस है, इसको मैं अगर डिस्टेंस मान लो सेपरेट किया इसको मैंने 2a से, सो एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा ना। अब मान लो मैंने निकालो डायपोल मोमेंट, इफ आई जस्ट नीड टू फाइंड द डायपोल मोमेंट हियर, राइट। अगर मैं इसका डायपोल मोमेंट निकालो तो क्या निकलेगा, एम इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसका हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, P इक्वल टू था ना, P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू ट्वाइस ए, इफ यू रिमेंबर,
राइट। यहाँ क्या हो जाएगा, m डाइपोल मोमेंट, m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू m इंटू क्या होगा, m इंटू ट्वाइस है। अब सोच रहे m मैंने क्यों लिया, याद कीजिए m मतलब कोई भी चार्ज, बिकॉज दोनों का क्या है, प्लस माइनस स्ट्रेंथ दोनों का सेम ही है, जस्ट आई हैव टेकन m हियर, सो m इक्वल टू 2 इंटू a, ये क्या हो गया इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना। तो चेंज इसमें होगा, तो क्यों चेंज इसमें बताओ, इसमें चेंज क्यों होगा, बिकॉज जो लेंथ है ना, लेंथ वो लेंथ है ना, पहले 2a था, अब मान लो मैं इसमें काट दिया, लेट्स से इफ आई जस्ट कट दिस राइट, सो पहले क्या था, ये 2a था, अभी क्या हो गया, a हो गया, सो जितना कम होगा ये ना, उतना ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम ही होगा, मीन स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल व्हाट डिक्रीज। आवाज में नहीं आया, जितना काटोगे ना उसको, जितना पीसेस काटोगे ना, वो क्या होगा, मैग्नेट ही रहेगा, राइट। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट व्हाट विल हैपन हियर, जस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल व्हाट चेंज, मींस डाइपोल मोमेंट। सी अगर मैं आपको स्ट्रेंथ बोल रहा हूं दैट इज ना, आता घुसा जल्दी से, है ना, बट व्हेन आई जस्ट यूज दैट वर्ड डाइपोल मोमेंट, लाइक क्या है ये, अब फिर से कहां से आ गया, है ना, कुछ ऐसा मैं थोड़ा था ना, सी दे आर लिंक्ड, है ना, हम लोग बस एक टर्म दे रहे हैं उसको। स्ट्रेंथ एक इंग्लिश वर्ड हो गया, हमारा फिजिक्स का वर्ड है ही नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं है, स्ट्रेंथ बोल समझते हैं ठीक है, लेकिन एक फिजिकल वर्ड हो गया ना तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, एक डाइपोल मोमेंट वाला टर्म यूज करते हैं, ठीक है। आई गेस यू रिमेंबर दिस, सी दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो मान लो थ्योरी बाई चांस लिख भी दोगे, प्रैक्टिकल में फंस जाओगे, बिकॉज यू विल गेट दिस इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड यू विल आस्क इन वाइवास, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, फिर फंसोगे, बात बोलो सर ने सिखाया नहीं, है ना। सो प्लीज instead of memorizing, try to understand the facts. Fine. So this is the second property. Now we will discuss the third one. अब बताओ यहाँ थर्ड वन हमारा क्या क्या हो सकता है, गेस करो, गेस करो थर्ड वन क्या होगा बेसिकली। सो थर्ड वन क्या होगा, देखो इसका जो मोस्ट है ना, इसका जो मोस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रेंथ है, जिसे डाइपोल मोमेंट कहता है ना, तो इसका मोस्ट जो है ना, ये कहाँ होगा, इसका जो स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होगा, एट द पोल्स होगा इसका, है ना। जो एक बार मैग्नेट है इसका सारा स्ट्रेंथ कहाँ होगा, एट द पोल्स होगा, ठीक है ना। सो पोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एट द पोल होता है ना, इस मैग्नेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होगा, एट द पोल्स, मतलब मैक्सिमम फोर्स यहाँ होगा एंड यहाँ होगा, ठीक है ना, बिकॉज ये दो ही रेस्पॉन्सिबल है पुल आउट करने के लिए, पुश आउट करने के लिए, है कि नहीं है। सो इसलिए एट द क्या होगा, ये पोल स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम एट द, और यू कैन से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स, ठीक है। दैट इज योर थर्ड। नाउ नंबर 4, राइट, नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, छोटा सा बात है। देखो 4 क्या होगा, देयर इज नो मोनोपोल इन अ बार मैग्नेट, है ना, यहाँ मोनोपोल नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा, देयर कैन नॉट बी एनी मोनोपोल इन ए व्हाट, मोनो, मैंने कितना पे मोनो, MONO, मोनोपोल, POLE, देयर कैन नॉट बी एनी मोनोपोल इन ए बार मैग्नेट। अब मैंने लिखा मोनोपोल, समझ में आया नहीं होगा ना, ये मोनोपोल क्या हो गया, बहुत वियर्ड नेम लग रहा है ना, बायोलॉजी टाइप में, है ना। नाउ सी मोनोपोल क्या होता है, मोनोपोल मतलब क्या, सिर्फ एक पोल, सिर्फ एक पोल, मतलब कोई भी एक बार मैग्नेट में, इन एनी बार मैग्नेट, है कि नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो, या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ साउथ पोल ही हो, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। एक बार मैग्नेट में 2 पोल्स होगा ही होगा, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ 100%। कितना मैंने कहा ना, अगर इसको कट करोगे ना ऐसे भी, अगर इफ यू कट दिस लाइक दिस, देन जहां से कट करोगे ना, ये पार्टी क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ हो जाएगा, अगर साउथ है तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर यहाँ से कट करो, सपोज इस पॉइंट से कट किया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। सो देयर कैन नॉट बी एनी मोनोपोल इन ए व्हाट, बार मैग्नेट। सो ये था आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से, और यू कैन से प्रॉपर्टी, जो अच्छा लगे उसमें समझो, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, राइट, द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए व्हाट, बार मैग्नेट। नाउ ये हो गया बार मैग्नेट बात, है ना। अब देखो बार मैग्नेट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलेगा। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल, मैंने बात अब कर लिया है, डाइपोल क्या होता है बस, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल क्लियर हो गया ना। देखो अगर मैं एक अलग टॉपिक बात करूँ तो अलग बात होगा ना, मैंने आप लोगों को सिखा दिया ऑलरेडी इन द प्रॉपर्टी में, है ना, प्रॉपर्टी का हेल्प सिखा दिया ना, एक डाइपोल क्या होता है, कैसे आता है इसके, है कि नहीं है। तो डाइपोल मैं फिर से बताता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, अगर मैं समझाऊँ आपको कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ना, तो क्या होता है, देखो ये जो बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्लस M, मतलब मैग्नेटिक, इसका मान लो ये स्ट्रेंथ, और इसका मान लो -M, है ना, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसमें, माइनस में इसका, है कि नहीं है। अब देखो ये नॉर्थ, ये साउथ हमारा बस के लिए है ना, ये नॉर्थ और ये क्या हमारा साउथ है। सो मैंने फिर से बोल रहा हूँ,
इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना, लेट्स से 2a, क्यों 2a क्यों ले रहा मैं, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज लग रहा है और ये नेगेटिव चार्ज लग रहा है। सो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का एक फिक्स डिस्टेंस रखते हैं तो वही क्या बनता है, डायपोल बनता है। अब आपने क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल, याद कीजिए आपने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल किया था चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। अब यहाँ क्या आ गया, मैग्नेटिक डायपोल। अब क्वेश्चन है मैग्नेटिक डायपोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेट के कारण डायपोल फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल हुआ। ठीक है, सो होपफुली यू रिमेंबर दैट, राइट। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी गोइंग टू डू, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा एक बताइए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है ना, अगर मैं बात करूँ, अगर ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल, अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैंने कहा था ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू 2l और 2a, सॉरी l फॉर लेंथ में सोचा था 2a, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। नाउ इफ समवन विल आस्क यू, राइट, और इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस, तो क्या होगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब कैसे निकालो, ये मैग्नेटिक है, स्ट्रेंथ है, मतलब क्या B है ना, B का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है ना, निकालिए और डालिए और निकालिए। आई गेस यू नो हाउ टू फाइंड द SI यूनिट, राइट। सो इसे SI यूनिट क्या होगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइन। नाउ इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद आएगा थोड़ा सा और अंदर जाएंगे हम लोग इसमें, इसी बार मैग्नेटिक पर थोड़ा और अंदर जाएंगे। हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हम लोग किसका और बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ है, लेकिन देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पिक होता है बहुत बार। ठीक है, और एक चीज़ आपको क्लास 10 में बताया गया था ना, यू मस्ट हैव गॉट दिस इन क्लास 10 ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बताने से पहले मैं बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, ये करने से पहले हम बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, नाउ सी व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने याद होगा ना, मैं आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इफ यू रिमेंबर वेरी फर्स्ट क्लास, राइट, वेरी फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था, द एरिया सराउंडेड बाय द व्हाट, चार्ज, एनी चार्ज, right, in which the other charge, right, in which the other charge experiences a force of attraction or force of repulsion. याद है, it is a what, area, or it is a area or region, right, surrounded by a what, charge particle, in which other charge particle, right, will experience a force of attraction or repulsion. उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो क्या होगा कि एनी रीजन है ना, मान लो कि अगर मैं यहाँ डालता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ डाला मैग्नेट, सपोज बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो कि नॉर्थ है, ये है साउथ है, ठीक है, एक और मैग्नेट यहाँ पे है सपोज दूर पे, ये है लेट्स से साउथ, ये है इधर में इसका नॉर्थ है, ठीक है, ये मैग्नेट मैंने यहाँ लिया। नाउ आई विल जस्ट मूव स्लोली, जब मैं यहाँ रखा हूँ ना, व्हेन आई जस्ट केप्ट दिस मैग्नेट हियर, राइट, सो आई कैन नॉट सी एनी मूवमेंट इन दिस टू मैग्नेट्स, देयर वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो मूवमेंट इन दिस टू मैग्नेट, मतलब जो जैसा है वैसा था, राइट, जो जैसा था वैसा ही था। नाउ इफ आई जस्ट रिप्लेस मींस मतलब थोड़ा मूव कराना इसको, लेट्स से मैं इसको यहाँ लेके आया, ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ, लेट्स से अगेन, राइट, सो थोड़ा इसको मैंने मूव किया, आई जस्ट मूव दिस, राइट, फिर क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि फिर भी ये जैसा है वैसा ही है, मैंने बस छोड़ दिया फुल्ली, इसको कुछ नहीं हो रहा पे, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, इसको इस मैग्नेट को मैंने समवेयर यहाँ रखा, ठीक है, आई जस्ट केप्ट दिस हियर, राइट। नाउ व्हाट आई हैव सीन, यू नो व्हाट आई हैव सीन हियर, कि जब जैसे मैंने यहाँ रखा ना, फटाक से दोनों एकदम चिपक गया, लाइक दे हैव जॉइंट ईच अदर, ठीक है ना, एकदम। अब ऑब्जर्व क्या हो ना, आई गेस यू मस्ट हैव सीन, एकदम आगे क्या होता है, चिपक जाता है, राइट। आई विल शो यू नेक्स्ट क्लास, आई जस्ट ब्रिंग वन मैग्नेट एंड ट्राई टू शो यू, और इन द लैब आई विल शो यू, फाइन। नाउ सी मतलब क्या है कि इस मैग्नेट का है ना, इस मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ है ना, एट दिस पॉइंट फोर्स ऑफ है इसका, इस पॉइंट में भी फोर्स नहीं है, लेकिन जब इस पॉइंट पे आया, मतलब क्या ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया इस मैग्नेट का है, मतलब इस रीजन में, मतलब इस पॉइंट के बाद है ना, कोई भी अगर मैग्नेट आता है ना, क्या करेगा इसको, ये
आइदर इसको अट्रैक्ट कर लेगा अगर ये साउथ पोल होगा तो, अगर ये नॉर्थ पोल हुआ, इफ इट इज नॉर्थ पोल है ना, क्या करेगा इसको दूर भगा देगा, बोला निकल यहाँ से, ठीक है, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑफ व्हाट, सेम साइन, सो गेट लॉस्ट। इफ यू आर अपोजिट देन कम विथ मी, राइट, या तो भगा देगा या तो ले आएगा, है ना, लेकिन अपना फील्ड में रहने नहीं देगा। आर पास में नहीं आ रहा है, आर पकड़ना श्योर। सो यही होता है रूल हमारा, वैसे कि नहीं है। सो इसलिए ये जो एरिया सराउंडेड बाय मैग्नेट, राइट, एरिया सराउंडेड बाय द मैग्नेट, राइट, इन विच मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द एरिया, आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इस डेफिनेशन है कि नहीं है, तो कैन राइट एज द एरिया और द स्पेस, जहाँ चलेगा द एरिया और स्पेस सराउंडेड बाय अ मैग्नेट, राइट, इन विच मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, in which magnetic force of attraction or repulsion can be experienced is known as what, magnetic field, ठीक है। now ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किस तरह दिखता कैसा है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखता है ना, लाइक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया था वहाँ पे, है ना, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह दिखता है हमने देखा था, है ना। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिखता कैसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो ये मानता हूँ ये, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, बाहर मतलब बाहर से नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुस जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ आपने सब कुछ क्लास 10 में किया है। आई एम जस्ट गिविंग अ रिवीजन, राइट, फाइन, यू मस्ट गिव दिस डायरेक्शन, okay, so you can say this is what magnetic field lines, which goes outside and get enter from the south, right, ठीक है ना। फिर but inside the magnet, you know what happens inside the magnets, क्या होता है आपका, field lines south to north travel करता है, please keep this in mind, outside the magnet it travels from north to south, मतलब नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, फिर अंदर में क्या होता है, साउथ से आता है और नॉर्थ चला आता है ना। सो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन, राइट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट, सिंपल वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट, तो क्या बोलोगे, नॉर्थ टू साउथ ना, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट इज व्हाट, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट इज व्हाट, आउटसाइड द मैग्नेट व्हाट इज दैट, if the direction of the magnetic field lines is what, outside the magnet, it is what, north to south. Please keep this in your mind. Fine. Just try to show you more. So it is looks something like this, see, beautiful, a kind of, mine are not so beautiful, but yeah, it is easy to understand, right, it is easy for you to understand. Let us draw nicely, see once again. And don't worry, you have to perform an experiment on this, means you'll get a similar kind of what, a similar kind of figure while doing experiment in a lab, fine. Now see this carefully, this is going out, entering in the south pole, right. Now we will discuss the characteristics or the properties of a magnetic field lines, right. So first, what is what, magnetic field lines, right, magnetic field lines, right, enters what, yeah, magnetic field lines originates from north pole and enters to south pole outside the magnet, first point. Second point, what, magnetic field lines travel from south to north inside the magnet, right. And third, the direction, है ना, direction of magnetic field lines is given by the tangent of that point, मतलब देखो कि अगर मुझे पता करना है कि इसका पता है, मान लो मैंने ऐसे दिया, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि नहीं है, या ऐसे ड्रॉ हुआ है, मान लो ये ऐसा है, मैंने कोई डायरेक्शन यहाँ
मैंने कोई यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया ना, तो मुझे डायरेक्शन कैसे मिलेगा? जस्ट बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना कि नहीं है, तो क्या होगा ये इधर जा रहा है, देखो इस पॉइंट मान लो इस पॉइंट है ना, तो टेंजेंट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। सो क्या है ये रहा है ना टेंजेंट। आई गेस आपको याद होगा क्लास में 10 अपने किया था ना, क्या टेंजेंट? एनी लाइन, राइट? याद नहीं होगा, आप में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को याद नहीं होगा ना ये भी चीज़। तो क्या था टेंजेंट? व्हाट वाज टेंजेंट? कोई भी लाइन है ना, एनी लाइन विच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से टच होकर चला था, जो लाइन है कि नहीं है, उस लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय द टेंजेंट। फाइन, कुछ इस तरह देखो, समझ लो दिस। I just draw from here, so this is the direction. I just take this point here, right? This is the direction like this. Fine. So जितना आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उतना क्या मिलेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? नाउ ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो NO, नो, हाँ, नो टू magnetic field lines intersect each other। मतलब क्या है बताओ मुझे इससे, कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं भी आपस में नहीं मिलता है। यहाँ देखो डायग्राम में मेरा एक भी लाइन जो है, देखो यहाँ पे एक भी लाइन है ना, मैंने सेकेंड से टच नहीं किया है। अब क्वेश्चन है वाई टू मैग्नेटिक, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? तो देखो आंसर क्या बहुत सिंपल है, मान लिया फॉर टाइम बिंग लेट अस एज्यूम कि ये इंटरसेक्ट किया, मान लो ये दो फील्ड लाइन है, मान लो ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है, मान लिया मैंने कि क्या है, दोनों इंटरसेक्ट किया, ठीक है, लेट अस अज्यूम। सो मान लो अगर इंटरसेक्ट किया, लेट्स से अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का है ना, अगर मैं टेंजेंट निकालूं, है ना, बिकॉज वी नो डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय व्हाट? ड्राइंग अ टेंजेंट। तो इस पॉइंट का टेंजेंट कहाँ होगा? समवेयर ऐसे, तो ये लाइन था ना, लाइन ये था हमारा, है ना, इस लाइन का टेंजेंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। और इस लाइन का देखो, इस लाइन का टेंजेंट कहाँ होगा? समवेयर लाइक दिस, है ना? ध्यान दो यहाँ बेसिकली, नॉट लाइक दिस, इतना एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, कुछ इस तरह होगा। तो देखो इससे क्या हमको समझ में आया कि एक ही पॉइंट से, है ना, सी एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट, राइट, फ्रॉम वन पॉइंट क्या हो रहा है इसलिए, देखो फ्रॉम वन पॉइंट ये दो डायरेक्शन में जा रहा है ना, इट इज गोइंग इन टू डायरेक्शन। क्या है पॉसिबल है? क्या है पॉसिबल है कि मैं एट द सेम टाइम, एट द वन टाइम ओनली मैं दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ। मान लो कि मैं सपोज इसी पॉइंट है कि नहीं है, मैं सेम टाइम, मान लो मैं जब कॉलेज से निकला है कि नहीं है, तो मुझे 5 मिनट बाद दिखा गया लेट्स से उल्लूबारी में, एंड एट द सेम टाइम मुझे देखा जा रहा है बेलतौला में। पॉसिबल है क्या कि मैं एट द सेम टाइम दो पोजिशन में रहूँ या दो डायरेक्शन में जाता रहूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं आधा पार्ट मैं बोलूँगा कि भैया आधा बॉडी इधर चला जा, आधा बॉडी इधर चला जा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इज क्लियर नॉट? सो सिंस at one point, right, at one point, right, a body cannot have, or anything cannot have, right, a body cannot have what? Two direction, right, at the same time or the same position, right? So two magnetic field lines never intersect each other, है कि नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं यार? So यह पहुंच जाएगा 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है? होपफुली आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। फाइन, so this was all about your magnetic field lines. Is it clear or not? Now अभी थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अच्छा, एक और फील्ड, मान लो एक और मैं बोलता हूँ जैसे आ गया, मान लो कि मैंने एक लूप ड्रॉ किया था ना, जैसे मान लो मैंने एक लूप ड्रॉ किया था, यहाँ देखो, मतलब क्या, देखो जितना रेडियस है ना, मान लो जितना ज्यादा इस बेसिकली देखो ध्यान से होगे, ये क्लोज लूप ही तो है ना, देखो ये सर्कल है बेसिकली, है ना, एक क्लोज लूप ही तो है, राइट, इट इज अ क्लोज लूप, है ना? सो एक क्लोज लूप का मान लो जितना ज्यादा रेडियस होगा, इफ द रेडियस इज मोर, राइट, देयर विल बी लेस फोर्स ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक इफेक्ट,
मैग्नेटिक, राइट। मैग्नेट का वहाँ क्या होगा, बहुत ही कम फोर्स देखा जाएगा। जितना मतलब सेम दो बहुत आसान है चीज़ें, मतलब जितना ज़्यादा दूर रहोगे आप, है कि नहीं है, राइट, उतना ज़्यादा क्या होगा आपके ऊपर, फोर्स कम पड़ेगा, राइट। सेम जितना ज़्यादा लूप का, राइट, जितना ज़्यादा आपका लूप का रेडियस होगा, है ना, उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स देखा जाएगा उसके ऊपर। मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है, लेट्स से बॉडी हियर, है ना, और मान लो एक बॉडी इधर पे है ना, सो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स होगा मैग्नेट का, ना इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स होगा मैग्नेट का, बताओ, कॉमन सेंस है, क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा फोर्स होगा, क्यों, बिकॉज सामने है, क्यों सामने है, सामने अगर है तो कुछ इस तरह से फॉर्म कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या होगा, देखो इसका रेडियस क्या है, देखो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली, तो लेस द रेडियस मोर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्लियर नॉट, मोर द मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो लेस क्या होगा, ज़्यादा करेगा, एंड इफ मोर रेडियस, इफ द रेडियस इज मोर, लेस विल बी व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, फाइन, less is the radius, more is the magnetic force, clear or not? So this is all about the magnetic field lines. Now next topic you will see in an NCERT book, after magnetic field lines they have given what, let's see what is given. They have given bar magnet as an equivalent solenoid, right, they have given topic as bar magnet as a equivalent solenoid, है ना, मतलब मुझे दिखाना है कि एक बार मैग्नेट है, एक मतलब एक देखा आपने, एक याद है ना, वी हैव डिस्कस सॉलिनॉइड, एक सॉलिनॉइड जो है बेसिकली, लेकिन ये ये सॉलिनॉइड है, ये नथिंग बट एज ए बार, ये बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, ये सॉलिनॉइड है ना, ये सॉलिनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है ना सॉलिनॉइड का ना, वो बार मैग्नेट के जैसा ही है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल करना पड़ेगा, अब लेकिन देखो हम इसका, हमें इसका एक्सप्रेशन पता है, वी नो द एक्सप्रेशन फॉर दिस, बट द क्वेश्चन अगेन राइज कि हमें क्या पता है, क्या हमें पता है कि एक, है ना, एक बार मैग्नेट से, है ना, कितना फील्ड निकलता है मैथमेटिकली, मींस वैल्यू, डू यू नो दैट, नो, राइट। सो पहले हम क्या बात करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि एक बार मैग्नेट से ना, एक बार मैग्नेट से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मींस वैल्यू, मैग्नीट्यूड, वी आर कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट, टू नो द व्हाट, टू नो द व्हाट, इट्स वैल्यू, फाइन, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या, तभी हम बोल पाएंगे कि क्या सॉलिनॉइड, राइट, क्या सॉलिनॉइड एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता भी है या नहीं, ऐसे मुंह से बोलना सत्य नहीं चलेगा ना, है कि नहीं है। सो एट दैट टाइम ओनली वी वर एबल टू से आइदर अ बार मैग्नेट बिहेव एज ए, सॉरी, आइदर अ सॉलिनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट और नॉट, तो अभी बार मैग्नेट एंड सॉलिनॉइड दोनों का ही पता होना पड़ेगा। लेकिन देखोगे आपका आंसर बुक में बहुत ही स्मार्टली उन्होंने बस एक दे दिया, टॉपिक लिख दिया है कि ये जो बार मैग्नेट का एक्सप्रेशन इतना होता है, लेकिन यहाँ तो आएगा नहीं बात ना, एग्जाम में वही स्मॉल टॉपिक है ना, पूरा दे देगा 4 मार्क का, 3 मार्क्स का, फिर सोचोगे ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, इट इज गिवन, यू जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक, राइट, इट इज गिवन, बट दे आर नॉट गिवन द डिराइवेशन देयर, बट वी नीड टू डिराइव दैट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव दैट। अगेन देखो क्वेश्चन जितना हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उतना एक और क्वेश्चन आ रहा है बाद में, है ना। अब देखो जैसे हमने निकाला था, आप कहते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था आपका, ई, याद है, ई था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में कितना फोर्स होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था आपका, ई इक्वल टू व्हाट, एफ इंटू क्या था, क्यू, राइट, याद है ना आप लोगों को ना, सब भगवान का कृपा है, प्लीज रिमेंबर दिस, ई इक्वल टू एफ क्यू, यू हैव गॉट, राइट। नाउ इफ आई जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, और अगेन इफ आई जस्ट से Coulomb's force, right, Coulomb's force, remember or not, Coulomb's force, what is Coulomb force, Coulomb's law of, or Coulomb's force of what you have done, Coulomb's force of electrostatic, right, in the first chapter, right, this you have done, right, and you have got as F equal to what, F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r of square, this you have got this, if I remember, right, आपको ये चीज मिला था ना F का वैल्यू, you have got this F, right, is it clear or not? Now similarly अगर मैं निकालूं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं इसको if I just change this from electrostatic, अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को चेंज कर दूं, क्या लिख दूं, मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, राइट,
कूलम्ब्स फोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, मतलब मैग्नेट के अंदर कितना फोर्स है ना। देखो यार ध्यान से कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज व्हाट प्लस एम, दिस इज व्हाट माइनस एम, है ना, करेक्ट। सो मान लो इन दोनों के ऊपर है ना, इन दोनों के ऊपर कितना फोर्स होगा मुझे निकालना, क्या होगा, F is equal to what, K for what, constant, but we know in case of magnet we take constant is what, mu naught by 4 pi, है ना। यहाँ 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ क्या आएगा, mu naught by 4 pi, that is what, nothing but 10 to the power -7 और 10 to the power -4, पता करना, ठीक है, 10 to the power -4 बता दे जाओ, मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। इनटू यहाँ क्या Q1 Q2, यहाँ क्या होगा M, लेट्स से, और लेट्स से इसको लेता हूँ M नॉट, ठीक है, मैं क्या लेता हूँ M नॉट, तो क्या होगा यहाँ पे M इंटू M नॉट बाई, लेट्स से डिस्टेंस हमारा R है यहाँ इसका भी, तो क्या हो जाएगा ये R ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये R ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज द व्हाट, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, याद रहेगा ना आप लोग को, ना भगवान भरोसा फिर से। सो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स फोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, राइट। सिमिलरली इफ आई जस्ट नीड टू फाइंड द, राइट, जैसे हमने फोर्स से निकाला ना, राइट, रिमेंबर ना कि आपने फोर्स से निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका ये, राइट, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस चार्ज, क्या था, E इक्वल टू व्हाट F बाई क्यू, याद है ना, E इक्वल टू F बाई क्यू, सॉरी क्यू नॉट था आपका, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, याद है आपको ना, मैं भूल गया सब कुछ, याद है, नहीं याद होगा, तो यहाँ पे ये हमारा मान लो एक चार्ज है Q नॉट, एट दिस पॉइंट वी वांट टू नो द फोर्स एट P पे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, है कि नहीं है। सो कितना होगा, जितना फोर्स होगा कंपेयर टू चार्ज, है कि नहीं है, राइट। इस पॉइंट पे अगर E पे मुझे, अब देखो यहाँ पे पॉइंट P पे अगर मुझे निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, कैसे निकालूंगा मैं इसको, मैं यहाँ चेक करूंगा यहाँ फोर्स कितना अप्लाई हुआ, F हुआ है, राइट, कूलम्ब्स लॉ से, और यहाँ पे क्या है बेसिकली Q नॉट है, तो क्या होगा E इक्वल टू व्हाट F बाई क्यू नॉट, राइट, E इक्वल टू व्हाट F बाई क्यू नॉट। सो if I solve this, right, if I just put the value of F here, F का वैल्यू आपको क्या था बेसिकली 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2, और if I just take Q naught, right, Q1 Q naught by R of square divided by Q naught, so what will get here ultimately, this is gone, what is left, 1/4 pi epsilon naught into what, Q1 by R square, or I can just take as Q only, चलेगा ना, है ना, अगर मैं चलूँ Q नॉट चलेगा ना, बताओ यहाँ पे, मोर इजी, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूँ, राइट, इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस चार्ज, राइट, फॉर दिस मैग्नेट, राइट, क्या मिलेगा, यहाँ देखो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा न्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ क्या देखो आपका Q, यहाँ क्या है M, सो यहाँ M होगा, R स्क्वायर का R स्क्वायर ही होगा, सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज रिमेंबर दिस टू, ये नहीं होगा तो आने वाला काम बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग वेरी इजी, फाइन। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दैट टू डेरिवेशंस, राइट, एंड मोर, so see you in the next class.